at the point A. ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइट ड्रॉ करना Perpendicular to the पड़ेगा, base कंस्ट्रक्ट and करना पड़ेगा, and height Yes, should always be perpendicular to the परपेंडिकुलर टू द base. बेस। बराबर, perpendicular मतलब एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए, so I'll Yes. perpendicular to the base, that is AD. Correct? yes, Now can I Yes. say area of triangle ABC is half into BC into AB? Am I correct? yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया है? Now, Yes, you guys sir. know what is the meaning of ratio? Ratio क्या होता है? What is ratio? The number which in fraction form. Fraction form. Number between what is a ratio? Numbers in fraction form. Numbers in fraction form, absolutely correct. Like अभी इसका अगर मैंने यहाँ पे बोला है it is 1/2, what will be the ratio? इसका ratio क्या होगा? 1:2। 1:2. बराबर। अभी अगर मैंने बोला कि 16 divided by 25, इसका रेशियो क्या होगा? 16:25। 16:25 ना, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म पहले कन्वर्ट कर 4/5. 4:5. 4:5. 4:5. कैसे? क्योंकि वो नंबर का स्क्वायर रूट है पक्का? 16 4 का स्क्वायर है। दोनों सेम टेबल में आते किधर भी? नहीं। तो उसका आपने डिवाइड कैसे किया फिर 4/5? कैसे किया डिवाइड? This is the smallest form for this division. Now if I say it is 4/8, what will be the ratio? 1:2। 1:2. 1:2 बराबर। If I say it 5/15, तो 1:3। 1:3। अब रेशियो समझ गया क्या है तुम लोग को? Yes. Now can we move ahead? Moving to the first, सबका टेक्स्ट बुक है? यस No Yes, sir, sir. yes sir. ओमकार सर, इसमें टेक्स्ट बुक डालें। ओमकार सर, एक सेकंड। इसमें टेक्स्ट बुक डाला है? इसमें टेक्स्ट बुक डाला है? टेक्स्ट बुक? हाँ, टोमेटो। शायद रहेगा। ठीक है। Unless we get the text books fixed, I'll move to the first questions or first type of problems that we are going to face in the first chapter, that is similarity. We have to find ratios of areas of triangle. Ratio of area of triangle. बराबर, ratio of areas of triangle. क्या समझ रहा है सुन के? जो भी एरिया रहेगा ट्रायंगल का उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाँ, एरिया रहेगा उसको डिवाइड करके उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बराबर। नाउ इफ आई से आई हैव टू ट्रायंगल्स, एक है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा है ट्रायंगल पी क्यू आर। बराबर, दो ट्रायंगल्स है मेरे पास, दोनों का मैं हाइट कंस्ट्रक्ट कर लूं। बराबर, अभी कौन मेरे को बताएगा ट्रायंगल एबीसी का हाइट क्या है? एडी और पीक्यू का पीएम। ठीक है, मैं दोनों का एरिया निकाल सकता हूँ? Yes. ठीक है, तो आई विल टेक एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मुझे रेशियो निकालना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा दोनों एरियाज को। Yes. Sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा? हाफ इनटू
half into Half into BC BC into AD. BC into BC AD. To 8. Half into BC into AD. AD divided by half into क्या आएगा? QR into QR PM. into PM. QR into PM. PM. बराबर? इतना तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाफ कैंसिल कर सकता हूँ मैं? Yes. Yes. हाफ मैंने क्या कर दिया? कैंसिल. बचा क्या? BC into AD upon QR into PM. So I'll get area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equals to B1 into H1. BC क्या है? Indirectly base of first triangle. Base 1. और AD क्या है? Height of first triangle. Yes. Yes. क्या है? Height of first triangle divided by QR क्या है? Base of Two second into triangle. Base of second triangle. B2. Height of second. Height of Height of second triangle. समझा? Whenever we try to find out the ratio of two triangles, ratio of areas of two triangle, what will be the answer? The answer will be B1 into H1, that is base into height of the first triangle divided by base and height of the second triangle. यही फर्स्ट प्रॉब्लम है. फर्स्ट या थियरम बोलो या कोई डेरिवेशन बोलो, जो बोलना है बोलो, बट उसके हिसाब से क्या बोलता है? इफ यू रीड द कंप्लीट स्टेटमेंट, वी नो दैट इफ वी टेक टू ट्रायंगल्स एंड गेट द रेशियो ऑफ द एरियाज, द आंसर विल बी B1 into H1 upon B2 into H2, where B1 is base of first triangle and H1 is height of first triangle, and B2 is base of second triangle and H2 is height of second triangle. इतना क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. फाइंड आउट करके बता सकते हो क्या? Yes, sir. वैल्यू दूंगा, आंसर फाइंड आउट करके बता सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्का? चलो, I'll give you the values. If I say BC is equals to 10, and if I say AD is equals to 50, on the other side I have QR is equals to 20 and PM is equals to कितना हो जाएगा? Get me the answer for this. पहला फिगर ड्रॉ करना है, पहले हेडिंग लिखना है रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, गेट दिस बोथ द फिगर्स ड्रॉन, उसके बाद डिवीजन जो भी मैंने पूरा पार्ट लिखा है वो, फिर B1 और H1 B2 H2 का वैल्यूज रिप्लेस करो और गेट मी द आंसर क्विक. Sir, 1:4. क्या हुआ? 1:4. 1:4 पक्का? 4 आएगा ना? करो, सॉल्व करो, क्या मिल रहा है बताओ. वन इज टू 4 किसको मिला है? निहित को मिला है ना? निहित? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. 1:4 है. 1:4 है? Yes, sir. Yes, sir. तो 1:4 मिल रहा है, किसी को 4 मिल रहा है, किसी को 4/4, 4:1 मिल रहा है, ऐसा कुछ है कोई?
सर वैल्यूज दिखाओ वापस। वैल्यूज दिखाओ। Sir, 1:4. 1:4 है 1:4. Yes. बराबर। यस सर। किसी को और यस कुछ सर मिल रहा है? 1:4 है। किसी को और कुछ मिल रहा है? नहीं, सबका हो गया। यस सर। किसी का बाकी है? कोई ऐसा है जिसका बाकी है? If you guys are done, we can start with the next move ahead. सबने वैल्यूज नोट डाउन कर लिया? मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करूं? Yes, sir. यस सर। Yes. स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस Yes, सर। चलो, फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी दिख रहा है स्क्रीन पे? यस yes, रेशियो यस ऑफ सर। area of two triangles. I cannot mark. दिख रहा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। दिखा है इन ट्रायंगल ABC, AD is the height and BC is the base. In triangle यस यस दिख रहा RPS है। is the height and QR is the base. If we divide half into BC into AD divided by half यस QR into PS, half cancel हो गया. Area of triangle ABC is equals to BC into AD divided by QR into PS. ये मैंने समझाया अभी? यस yes, sir. Yes, sir. आगे नीचे, therefore hence we can say that base area of two triangles is equal to the ratio of the products of their bases and their corresponding heights. Simple भाषा में B1 into H1 divided by B2 into H2. इधर तक सबको क्लियर है? यस Yes, सर। चलो, moving ahead, we have the condition 1. We have condition 1.
फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स विथ, क्या फर्स्ट कंडीशन, इक्वल हाइट या इक्वल बेस है, इक्वल हाइट. इफ वी हैव टू ट्रायंगल्स हु हैव their heights congruent, or we can say their heights are equal. By saying that their heights are equal, can we say h1 is equals to h2? ये बोल सकता हूँ मैं? Yes. 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 So I Yes. write here h1 is equals to h2. So क्या हो जाएगा? Area of triangle, first triangle divided by area of second triangle, जो पहले हम लोग रखते थे b1 into h1 divided by b2 into h2. Can I write b1 into h1 into b2 into h1 again? Yes. Yes. I'll write the reason h1 is equals to h2. बराबर, h1 cancel हो जाएगा. Yes. Yes, sir. बचा क्या? b1 divided by b2. So this proves that if we have two triangles with same height, or if we have two triangles with equal heights, the ratio of their areas depends upon their bases. Bases. इधर देखो, टेक्स्ट बुक में देखो, if the heights of both triangles are equal, then we have triangle ABC divided by triangle PQR, जिसको हम लोग डायरेक्ट उसका डेरिवेशन निकालेंगे तो BC इंटू उसका हाइट डिवाइडेड बाय QR इंटू H, बराबर. H कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? BC divided by QR. So we can say the ratio of the areas of triangles with equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases. In simple language, if we have two triangles with same or common height, then we can say the ratio of the areas depends upon their bases, that is b1 upon b2. ये क्लियर है सबको? Yes. Yes, पक्का? sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes. अभी तो मैंने बोल दिया उसका हाइट कॉमन है, तो अगर उसका बेस कॉमन रहेगा तो तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे डिपेंड करेगा. करस्पॉन्डिंग हाइट्स पे डिपेंड करेगा. Yes. हो जाएगा. Yes. पक्का? ठीक है. Yes, sir. हम लोग एक बार Yes, उसको सॉल्व sir. करके भी देख लेते हैं. मूविंग टू कंडीशन 2. Condition 2, where bases are congruent. We can say B1 is equals to B2. So I have area of triangle 1 divided by area of triangle 2 is equals to B1 into H1 divided by B2 into H2. I can also write B1 into H1 divided by B2 in, sorry. I can also write B1 into H2 again. B1 will get cancelled. I will have answer H1 upon H2. Is it clear? If we have Yes, sir. Yes, with sir. bases common, their area, the ratio of their areas will depend upon their heights. If we have two triangles with height congruent, then the ratio of the areas will depend upon their bases. Yes. Bases. इधर तो सब कुछ क्लियर. अब तो हो गया बेस कॉन्ग्रुएंट है, हाइट कॉन्ग्रुएंट. अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो रेशियो क्या रहेगा? वन. पक्का? कैसे वन? बताओ. सर दोनों कॉमन है तो कैंसिल होंगे ना. दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो क्या होगा? I'll say B1 is equals to B2 and I'll say H1 is equals to H2. So I have area of triangle 1 divided by area of triangle 2 is equals to B1 into H1 divided by B2 into H2, which is equals to B1 into H1 divided by B1 into H1. बराबर है? Yes. हमने B2 के जगह B1 रिप्लेस कर दिया, H2 के जगह H1 रिप्लेस कर दिया. B1 कैंसिल, H1 Cancel 1. लेफ्ट. 1. बराबर है? सबको समझ Yes. आया? Yes. Yes, ये sir. था तुम्हारा 3 स्टार्टिंग का कंडीशन.
Condition 1, if the heights of both triangles are equal, then the ratio of the areas will depend upon the ratio of their bases. If there are two triangles with common base, we can say the ratio of the areas will depend upon their heights. The ratio of their areas will depend upon their heights. Third condition यहाँ पे दिया नहीं है, नहीं. Third condition मैंने खुद की तरफ से ऐड कर दिया, but वो याद रखना. If we have two triangles where base and heights both are congruent, then the ratio will always be equal to 1. The ratio will be equal to 1. बहुत इजी था ये? इजी था कि नहीं? नहीं, हार्ड लगा? No, sir, easy था. इजी था ना? We'll move to the first exercise. सर दिखाया तो इजी बट सम बहुत हार्ड लग रहा है. कैसा लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? इजी रहेगा, हार्ड रहेगा? कैसा लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? Easy. Easy है sir. इजी है. ठीक है. नाउ यू हैव अ फिगर. सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दो ट्रायंगल दिख रहा है, दो अलग अलग ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल Yes. ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल है ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल डी बी सी. बराबर दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. ट्रायंगल ए बी सी के लिए बेस क्या है? BC. BC. सी. पक्का? ट्रायंगल डी बी सी के लिए बेस क्या है? BC. BC. BC है. ठीक है. ट्रायंगल ए बी सी का हाइट क्या है? AE. AE या EC या AB है हाइट? AE. बराबर. क्यों? ट्रायंगल एबीसी है. Perpendicular. Perpendicular है base NC. को. AE is perpendicular to BC, so AE will be the height of triangle ABC. Now, what is the height of triangle DBC? DF. DF. क्यों? DF. Again perpendicular है. Perpendicular to the base. BC. बराबर. अब कोई बोलेगा कि सर बेस BC के बाहर है F पॉइंट, तो अगर हम बेस BC को एक्सटेंड करेंगे तो there is an external that there is an extension. दिख रहा है सबको यहाँ पे? Yes. ड्रॉ किया. There is a, ठीक है, रे ड्रॉ किया और उसके ऊपर हमने पॉइंट F डॉट किया. दैट इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल DBC. अब दोनों ट्रायंगल का बेस BC कॉमन है. Yes. कॉमन है. उनका एरियाज का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? Heights के ऊपर. Height. ABC का हाइट AE डिवाइडेड बाय DBC का हाइट क्या है? DF. AE divided by DF. What is the value of AE given? 4 by 4. 4 by 6. DF का value 4 by 6. What is 4 by 6? 2 by 3. 2 by 3. Clear है? Yes. Easy था बहुत? Yes, sir. Yes. ठीक. चलो. Now practice set 1.1. Practice set 1.1. We are given that there is a triangle with base 9 and height is 5. There is another triangle with base 10 and height is 6. We have to find the ratios of this triangle. Ratio of areas of this triangle. कर सकते हो ये? Yes. तो triangle का base और height दिया है, Yes. उनका ratio, areas का ratio निकाल. ठीक है, निकालो जल्दी. Try देखो क्या मिल रहा है सर तुम लोग को. फेयर नोटबुक में निकाले. क्या हुआ? फेयर नोटबुक में निकाले. हाँ, फेयर नोटबुक में निकालना है. प्रैक्टिस सेट है ना बेटा? सॉल्व करो. देखो अगर नहीं आ रहा तो आई विल सॉल्व फॉर एवरीवन. सर क्वेश्चंस नहीं लिखा तो चलेगा? क्या हुआ? क्वेश्चंस नहीं लिखा तो चलेगा?
हाँ चलेगा, क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, ऑनलाइन कॉपी है टेक्स्ट बुक का? सर हाँ रेशियो इज 3:4. Yes, sir. है. हाँ ऑनलाइन कॉपी है तो चलेगा। रेशियो क्या है बेटा? 3:4. 3:4। बाकी सबको देखो चल रहा है, हाँ सर। बराबर है। यस। और किसी को कुछ अलग आंसर मिल रहा हो तो बताओ पहले। Sir, 3/4. 3/4 मिल रहा है। गुड गुड। यस सर। Everyone done? यस। Yes sir. यस सर। So कोई है जिसको ऐसा है जिसको आंसर नहीं मिल रहा है एंड somebody wants me to solve? अगर नहीं हो रहा तो बोलो, I'll solve it. सर आप सॉल्व करो क्योंकि मेरा Solve करो? आंसर आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो। Practice set 1.1, question number 1. We are given that B1 is equals to 9 and H1 is equals to 5. B2 is equals to 10, H2 is equals to 6. Barabar. Now we know that area of triangle 1 divided by area of triangle 2 is nothing but B1 into H1 divided by B2 into H2. B1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9, 9 का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय H1 का वैल्यू 10 into H2 का वैल्यू 6। कितना हो? 9 into 5 45 Upon 60. 3 बाय। क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। Yes sir. कोई है नहीं समझा अभी भी? समझा. समझे सर। सबका सॉल्व करके हो गया? यस। Question. Now moving to question number 2. We are given a figure where BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. दिख रहा है? दो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा दो ट्रायंगल? चलो जल्दी जल्दी बताओ। ABC और ABC and ABD. ABC and ADB बराबर है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। For triangle 1, triangle ABC, what is the base? AB। What is the height? CB। CD? ठीक है। ट्रायंगल ADB, सेकंड ट्रायंगल, बेस क्या है? AB। हाइट क्या है? AD। If you see, both the triangles have common base. Same base है दोनों ट्रायंगल का? Yes sir. Which is the common base? AB। AB is the common base. तो उनका एरियाज का रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? Height. That is, for first triangle height will be BC and for the second triangle height will be AD. AD. समझा? अभी उसका रेशियो निकाल Yes सकते हो? sir. 1. Yes. यस सर। निकालो फिर रेशियो। नहीं आ रहा तो I'll solve. 1/2. 1:2. 1:2। हाँ सब बोल दीजिए, सॉल्व भी करना पड़ता ना बेटा। ओरल एग्जाम थोड़ी होगा, रिटन एग्जाम। सर वो कंडीशन दिए थे वो नहीं लिखना है ना फेयर नोटबुक में? क्या हुआ? कंडीशन दिया है वो आपको होमवर्क करना रहेगा बेटा। वो तीनों कंडीशन। शिवम सर, बोलो। आपने आवाज दिया शिवम सर। हाँ इधर आओ ना 2 मिनट।
एक सेकंड आया। हाँ, so you will have to do all the 3 conditions as homework by yourself, practice के लिए। फेयर नोटबुक। yes बेटा, फेयर नोटबुक। इसको एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है ये, इसके ऊपर ड्रॉ करने का। इस पे नहीं करना, तो ये करके करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट ओपन करके जो भी करने का इसमें एडोब में, एडोब स्टाइल में, या तो फिर वो अपना शीट में जो कल कर रहा था। छोड़ो, बाद में करना पड़ेगा। अभी तो वो ब्राउजर में ओपन है, ब्राउजर में डाउनलोडेड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, चेक करना पड़ेगा। अगर तो उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन में तो इसमें बना के सब वो फोल्डर बना के बेटर है। ठीक है, बाकी सब चलो हो गया सर, सॉल्व हो गया। कुछ डाउट है सर। किसी को चाहिए कि मैं सॉल्व करूं? इफ यू गाइस वांट आई कैन सॉल्व फॉर यू गाइस। एनीवन? नो सर। सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है वी हैव टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। वी हैव segment AB as common, or segment AB is a common base, so we can say area of triangle ABC divided by area of triangle ADB will be equal to BC upon AD. Since both triangles have common base, the ratio of the areas will depend upon their heights. So BC का value we have 4, we have AD का value as 8. 4 by 8 is nothing but 1 by 2. बराबर? यस सर। यस सर। Now सबका हो गया ना सॉल्व करके? Can I move to the third question? हाँ। यस सर। चलो, moving to the third question, we have in adjoining figure 1.14 we have segment PS. दिख रहा सबको PS? यस सर। ठीक है, PS दिख रहा सबको? PS is perpendicular to RQ and QT is perpendicular to PR. PR, if RQ is 6 and PS is 6 and PR is 12, we have to find QT. We have to find QT. चलेगा? How many triangles do you see in the following figure? कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? 2। बस सारे ट्रायंगल है? 3 या कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं फिगर में? 3 सर। 3 बस 3? 4 है सर। मुझे तो 5 दिख रहे हैं। देखो अच्छे से देखो। चलो, I'll start naming them. You guys verify if I'm saying it correct, okay? Triangle PQT. बराबर? Second, triangle RTQ. यस सर। Triangle PQR. यस सर। 5। Triangle PSQ. यस सर। And triangle PSR. बराबर है 5 triangle? यस सर, बराबर है। Concerned है. We have to find QT. We have to find QT. QT कोई ट्रायंगल का बेस है? नहीं, हाइट है। हाइट है? कौन सा ट्रायंगल का हाइट है? QT पी सर, आर बेस से पी आर QT का हाइट है? क्यू का बराबर, PQT का हाइट है। और वो ट्रायंगल का बेस क्या रहेगा फिर? PT। बराबर। नाउ मूविंग, बाकी कौन से सेकंड ट्रायंगल का वैल्यूज है हमारे पास? RQ कौन सा ट्रायंगल का बेस है? RQ PR PQR का PQR का बेस है? PQR का। हाँ, और PQR का ट्रायंगल का हाइट क्या है? QT QT हाइट। PQR बोलो ना बेटा। PQR का हाइट क्या है? सर PS। सबको clear लग रहा है? ठीक है, चलो we'll start solving.
तो देखते हैं क्या क्या समझ में आता है हमको। चलो, we'll start with question number 2. What do we see here? We have two triangles, n triangle PQT and triangle PQR. बराबर है? We have segment PT as base and we have segment QT as height for triangle PQT. जो बोला मैंने वेरीफाई कर लो एक बार, जो मैंने बोला सही बोला कि नहीं। For triangle Yes, sir. सही Yes, sir. सही we है. have PT as the base and QT as the height. Moving to triangle PQR, we have segment RQ as base and we have segment PS as height for triangle PQR. सही बोला मैंने? Yes. Yes, sir. Now if I try to get their areas, ratio of their areas, area of triangle PQT divided by area of triangle PQR, क्या होगा? B1 into H1 upon B2 into H2. B1 into H1 upon B2 into H2. B1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? B1 क्या है? B1 क्या है? PT. PT? सबको PT लग रहा है? किसी को RQ लग रहा है? हाँ ना, कुछ बोलोगे बेटा? PT है? PT into H1 का वैल्यू क्या है? QT. QT. डिवाइडेड बाय B2 का वैल्यू क्या है? RQ. RQ RQ और into H2 PS. का वैल्यू क्या है? PS. PS. S into PS. बराबर। इधर तक समझ में आया? Yes. B1 का वैल्यू क्या आएगा? PT का वैल्यू क्या दिया हमको? 12. 12 दिया है? 12/2 करना पड़ेगा। सर दिया 12 by नहीं 2 है, अभी करना करना पड़ेगा क्योंकि पड़ेगा. वो PR PT का का वैल्यू वैल्यू दिया है. है? नो सर, दिया नहीं नहीं. दिया? नहीं दिया। बट हम लोग को PR का वैल्यू दिया है? यस। Yes. हम लोग को RT का वैल्यू दिया है? या किसका वैल्यू दिया हमको? PR का वैल्यू दिया. PR का दिया है सर. का दिया है? PR का दिया है? 12। Yes. 12। ठीक है, चलो। PT का वैल्यू नहीं दिया बराबर? PT का वैल्यू दिया? नहीं दिया है सर। नहीं दिया है। नहीं नहीं दिया. दिया है। तो फिर हाफ करना पड़ेगा। हाफ करना पड़ेगा। Half. हाफ करना पड़ेगा। कितना 12 by होगा 2 is हाफ? equals to 6. 12 divided by 2 is equals to 6. 6 बराबर? यस। Yes. अलग लग रहा है? नहीं. नहीं, सेम लग रहा है। यस। यस। ठीक है, चलेगा। और क्या क्या सॉल्व कर सकते हो? गेट में द आंसर। यस सर। इसको जो यस सर। सबसे पहले आंसर मिल रहा है, बताओ क्या मिल रहा है आपको आंसर?
किसी को मिला आंसर? वन इज टू फोर। 1:4। बाकी लोगों को क्या आंसर मिल रहा है? सर क्यूटी की वैल्यू नहीं दी है। क्या हुआ? क्यूटी की वैल्यू नहीं दी है। हाँ, तो क्यूटी की वैल्यू तो फाइंड करनी बेटा। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा पक्का? 1:3। Chinmay is writing 1:3. सर ये बेस और हाइट के बाद से जरा फिर से समझाओ ना। बेस और हाइट के बाद से समझाओ ना फिर से एक और बार। ठीक है। बाकी सबने ट्राई कर लिया? यस सर। ट्राई किया? यस सर। क्या मिल रहा है? रेज़ टू 6। चलो, we'll start solving them. सर 3। हाँ 3। इसको 3 मिल रहा है आंसर। कैसे मिला आंसर 3 मेरे को एक बार बताओगे बेटा? इसको भी 3 आंसर मिला। बहुत सर वो लगा। टीआर का 12 है और ये मतलब बेस 12 है और पीटी का बेस 12 है। उनको कैंसिल किया तो 1/2 मिलता है। 1/2 को रेसिप्रोकल के फॉर्म में 2/1 करने के बाद 6 के साथ कैंसिल किया तो 1/3 आता है। 1 इंटू क्यूटी आता है। फिर 3 को उससे लेगा तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्यूटी आता है। चलेगा, ये बोल रहे तुम। If I give you guys a better method to solve this, ये तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। This we can keep it as it is. ठीक है? What if I take area of triangle PQR? What will be the area of triangle PQR? Half into base into Half into base into height. What is the base of triangle PQR? RQ क्या है? PR? PR और इंटू हाइट क्या है? PS। हाइट क्या है? PS। क्यूटी PQR मैंने बोला। PS। सर बेस PQR का QR है। यस सर। बेस QR बोल रहे हो आप? ठीक है। व्हाट इफ आई, मेरे पास वैल्यू किसका है? मेरे पास वैल्यू PR का है। कैन आई कंसीडर PR एज द बेस? सर QR का भी वैल्यू QR का भी वैल्यू है आपके पास, बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू क्यूटी। अगर मैं QT को हाइट कंसीडर करूं तो मैं PR को बेस कंसीडर कर सकता हूं? यस Yes. There can be two different heights for a same triangle, correct? It's Yes. on the naming. If I take PQR, where Q is the height and PR is the base, कर सकता हूँ ऐसा कंसीडर? कर सकता हूँ? Yes. अगर मेरे पास PR बेस है तो हाइट क्या रहेगा? QT half into what value of PR given to us? 12. 12 into QT. Two ones are 2, 6 are 2 6 6 are 2 6. 6 into QT बराबर ये मिल गया बराबर? यस सर। If you guys were saying I have a second method, area of triangle PQR, which is equals to half into again base into height.
वहां पे अगर हम लोग देखें तो सेकंड टाइम यू गाइस आर सेइंग RQ is the base. Yes. If RQ is the base, then what is the height? PS. PS half into RQ into PS. इसको हम लोग ने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1. 1. Area of triangle PQR is 6 into QT. 6 into QT. I'll take the second method where I have RQ is the base and PS is the height. Half into, what is the value of RQ? 6. 6. What is the value of RQ? 6. What is the value of PS? 6. 12. 2 ones are 2 threes are. Have the value is equals to 18. I'll mark this as equation number 2. If I check from equation number 1 and equation number 2, दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल LHS सेम, हम लोग RHS कंपेयर कर सकते हैं. LHS सेम है कि नहीं? Yes. What is the LHS? Area of triangle PQR. I can say from 1 and 2. From 1 and 2, I have 6 into QT is equals to 18. Barabar? Yes. Yes, sir. Is equals to 18 divided by 6. What will be the answer? QT is equals to 3. 3. एक और बार पूरा समझा रहा हूँ, ये अभी के लिए वाइप आउट कर दो. If I have two triangles, if I have triangle PQ, first I'll take the triangle PQR. First I'll take triangle PQR where I'll consider PR is the base of the triangle. तो height क्या होगा? QT height होगा. तो मैंने वही किया. I took base as PR and height as QT. बराबर. फिर उसके बाद half into PR into QT, half into I have PR का वैल्यू 12 into QT. मैंने 2 और 12 को कैंसिल किया. What I get? 6 into QT. I'll mark it as equation number 1. I'll mark it as equation number 1. Moving to the second triangle, second possible way, where we have triangle PQR, where RQ is the base. तो height क्या होगा? PS. Yes. PS हुआ half into RQ into PS. Half into 6. 6. 2 ones are 2, 6, 2 3s are 6. तो मैंने कैंसिल किया. I get 1 into 3 into 6. What is 1 into 3 into 6? 18. Is equals to 18. I marked it as equation number 2. By equation number 1 and equation number 2, I can see the LHS are same. Area of triangle PQR, LHS same, हम लोग RHS compare कर सकते हैं. From equation number 1 and 2, I get 6 into QT is equals to 18. 6 into QT is equals to 18. I'll get QT is equals to 18 divided by 6. यहाँ पे multiplication है. Right hand side जाएगा तो Division होता. Divide हो जाएगा. QT is equals to 18 divided by 6. What will be the answer? QT is equal to 3. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसा डिफिकल्ट लगा? कोई भी है जिसको ऐसा लग रहा है सर वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूं? सर वाज माय मेथड रॉन्ग? वाज योर मेथड रॉन्ग? नहीं बेटा, अगर आप मैं एक बार प्रॉपर अगर पूरा सॉल्यूशन देखूंगा तो मैं बता सकता हूं. इफ यू आर गेटिंग द आंसर 3, इट शुड नॉट बी रॉन्ग बाय एनी चांस. बट अगर मेथड अगर आप निकाल के केसो सर किसी को भेज सकते हो तो आई विल चेक एंड आई विल गेट बैक टू यू देन. फॉर नाउ इज दिस क्लियर? Yes, sir. yes. समझ में आया? I took two different same triangle with two different methods where bases and heights were different. I compared equation number 1 and 2. I got the answer for value for QT. If you guys want, you can start writing it. सर इक्वेशन 1 दिखाओ ना, नोट डाउन करने के. इक्वेशन 1 दिखाओ ना, नोट डाउन करने के लिए था. इक्वेशन नंबर 1 स्क्रीन पे ही है. Start writing it. कुछ डाउट है तो एक बार पूछो. If you guys want, I can show the diagram once again. Try having an online copy of your own textbook so that if you guys want, you can refer it after the lecture. क्या सीखा, क्या समझा, कुछ नहीं समझा, you can get back to me before the start of the next lecture.
फ्रॉम 1 and 2 का सब्स्टिट्यूशन। क्या हुआ? फ्रॉम 1 and 2 का सब्स्टिट्यूशन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। हाँ ओके। डन सर। डन? Is everyone Yes. clear? Any doubt? सर हो गया। कुछ भी डाउट है जो भी आज सीखा है उसमें? नो सर। Now you guys have an homework to do before my next lecture. That will probably by Saturday or Sunday. What you guys have to do, you have to write all the 3 properties or conditions that we learned at the start of the lecture. दिख रहा है सामने? If the condition of Yes sir. equal, then ये लिखना है. If the condition, if the bases of both the triangles are equal, then, and third जो मैंने खुद से बताया है, if the height of both the triangles is equal as well as the base of both the triangles is equal, तो what will be the ratio? सबको समझ में आया? ये होमवर्क क्या बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर गाइस हैव टू राइट इट डाउन इन अ फेयर नोटबुक. प्रैक्टिस करो, कुछ भी डाउट आएगा बताओ. एंड इफ यू गाइस वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, यू कैन स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन. सिर्फ आपको डालना है. रेशियो में क्या करना रहेगा आपको? बेस और हाइट. सर वो थर्ड कंडीशन दिखाओ ना, हम लोग स्क्रीनशॉट दे देते. थर्ड कंडीशन दिस इज कंडीशन 3. हाँ, so you can try question number 5 from exercise 1.1 problem set 1.1. अगर आता है तो well and good, if not हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में से उसको सॉल्व करने वाले. सर कंडीशंस भी पेयर में और ये प्रैक्टिस सेट भी पेयर में ही लिखे ना? क्या हुआ? ये प्रैक्टिस सेट और कंडीशन दोनों पेयर में ही लिखे ना? दोनों. हाँ, सब पेयर में करना बेटा. हाँ, अभी क्लासेस चालू होगा तो फिर देखेंगे. अगर कभी मुलाकात हुई तो फिर आई विल चेक किसने कितना किया है. If not, I'll ask you guys to upload a PDF probably. जितना भी सॉल्व किया क्लास में सबका टिक्स क्लिक करके PDF बना के फिर then we'll review. ठीक है? Is everyone clear? Any doubts for today? नो डाउट. नो डाउट सर. नो डाउट. समझ में आ रहा है ना? If you guys want to change something कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, I'll try something better. That is good. सबको समझ में आ रहा है? यस सर. चलेगा. That's it for today. We'll stop here for today. See you guys in the next lecture. Bye bye. Have a good day, guys. Thank you sir. Bye sir.